ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਡੋਲਨ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਜੇ ਭੁੱਲੀ ਜੇ ਚੁੱਕੀ ਸਾਈਂ, ਭੀਤ ਹਿੰਜੀ ਕਾਢੀਆ। ਜਿਨਾ ਨੇਹ ਦੁਜਾਣੇ ਲੱਗਾ, ਜਿਨਾ ਨੇਹ ਦੁਜਾਣੇ ਲੱਗਾ। ਚੂਰ ਮਰੋਂ ਸੇ ਵਾਡੀਆ, ਹਉ ਨਾ ਛੋਡੋ ਕੰਤ ਪਾਸਰਾ। ਸਦਾ ਰੰਗੀਲਾ ਲਾਲ ਪਿਆਰਾ, ਇਹੋ ਮਹਿੰਜਾ ਆਸਰਾ। ਹਉ ਨਾ ਛੋਡੋ ਕੰਤ ਪਾਸਰਾ, ਸਦਾ ਰੰਗੀਲਾ ਲਾਲ ਪਿਆਰਾ। ਇਹੋ ਮਹਿੰਜਾ ਆਸਰਾ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨ ਨਾ ਸਕੂੰ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨ ਨਾ ਸਕੂੰ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਖੇ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਸੁਭਾਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਔਰ ਗੋਦ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ, ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ। ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਭੇਟੇ ਗੁਰਦੇਵਾ, ਕੋਟ ਪਰਾਧ ਮਿਟੈ ਹਰ ਸੇਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ।
ਉਪਰੰਤ ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਚਾਰ ਸਹਿਤ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਔਰ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ, ਬਲਕਿ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ, ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾ ਉਪਰ ਰਾਮ, ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਸਗਲ ਭਗਤ ਤਾਂ ਕੋ ਸੁਖ ਵਿਸਰਾਮ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹਉਮੈ ਛੱਡਣ 'ਤੇ, ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਣ 'ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਾਨੁਖ ਕੋ ਦੀਨਾ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਐ, ਇਹਦਾ 4 ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨ ਜਾਤ ਗਰਭ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਫੇਦ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਹਲਦੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਤੇ ਚੂਨੇ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਦੋਵੇਂ ਰੰਗ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਰੰਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਰੰਗ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਪਏ ਨੇ। ਵੰਡੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਵੰਡੀਆਂ, ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨ ਦੀ, ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੀ ਵੰਡੀ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੀ ਵੰਡੀ। ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਨੀਵਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਨੀਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਚਨ ਹਨ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ, ਸਭ ਬੰਦੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਵੇਖੋ ਭਗਤ ਜਨ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੇ, ਔਰ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਫਾਸਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ 4-5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਲਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਤੂੰ ਉੱਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ, ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਤੂੰ ਉੱਚਾ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੌਣ ਹੈ ਕਹੋ ਕਬੀਰ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੈ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹੀਤ ਹੈ ਹਮਾਰੇ। ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਵੇ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਭੁੱਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੈ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਬਾਝ ਸਨਾਤ। ਜਿਹਨੇ ਖਸਮ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਹੈ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਨੀਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਕਿਸ ਘਰ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਤ ਜਨਮ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਤ ਜਨਮ ਨੇ ਪੁੱਛੀਐ, ਸੱਚ ਕਰ ਲਿਹੋ ਬਤਾਏ, ਸਾ ਜਾਤ ਸਾ ਪਤ ਹੈ, ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਪਤ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ। ਸੋ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੀ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਮ ਹੋ। ਅੱਜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, 58 ਨੰਬਰ ਬਚਨ ਤੇ 59 ਨੰਬਰ ਬਚਨ, 58, 59। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰੰਭ 'ਚ ਆਪ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕੁਰਾ, ਰਾਈ ਦਸੇ ਭਾਏ। ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਵੇਖੋ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਾਂ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਤੇ ਪਖੰਡ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਰੀਤਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਿਮਿਤ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਖ ਕਹਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ
बहुत गल्लां स्पष्ट लिखियां गईयां हन। ते ये लिखिया गया है कि जदों प्राणी चढ़ाई करे 10वें दिन जां जिहड़ा भी दिन परिवार नूं सही लगे उस दिन प्राणी निमित्त अंतिम अरदास करनी है। उदों बाद हुण होर कोई रस्म करन दी लोड़ नहीं है, कोई वरीणे दी लोड़ नहीं है, कोई बरसियां दी लोड़ नहीं। इदां दी कोई साडी मर्यादा अंदर जां गुरबाणी च गल नहीं कीती गई, पर असीं करदे हां, साडे लोक करदे हन। कारण की है? एक तो गुरबाणी ज्ञान की घाट, एक सानू मर्यादा का पूरा पता नहीं है, तो दूजे नंबर ते साडे मन अंदर वहमां भरमां दियां विचारां इन्नियां ज़्यादा बैठियां पईयां ने। जे कोई समझाउंदा भी है, जे कोई दसदा भी है, आपां फिर भी करी जांदे हां, करदे हां। हुण जदों कोई पुरानी चढ़ाई करदा है ते जो सनातन मत हिंदू मत दे अंदर विचार हैं जां जो गरुड़ पुराण अंदर लिखिया है वो गल्लां हुण वो ते उन्हां दियां हन। साडे लई ते पंडित मुल्ला जो लिख दिया छाड़ चले हम कछु न लिया, हमारा झगड़ा रहा न को पंडित मुल्ला छाड़े दऊ। गुरु दा पंथ की सी मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। गुरु ने निर्मल पंथ चलाया। उन्होंने कहा गया जनेऊ पाओ। महाराज कहन लगे जदों मैं हिंदू ही नहीं हाँ फिर मैं जनेऊ क्यों पावां, जनेऊ क्यों पावां? क्योंकि मैं हिंदू नहीं हाँ, साडा ते धर्म वखरा है। गुरु नानक महाराज ने निर्मल पंथ जगत अंदर प्रारंभ किया। उसे निर्मल पंथ नूं गुरु कलगीधर महाराज ने खालस पंथ किया। खालसा पंथ, खालस ते निर्मल गल इको ही है। महाराज ने कहा खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगट्यो खालसा परमात्मा की मौज। पर हुण असीं अपने आप नूं खालसा भी कहाई जाने आ, गुरु के सिख भी कहाउंदे हां, काम फिर सारे ब्राह्मणवादी करदे हां। हुण गरुड़ पुराण अंदर की लिखिया है? जदों कोई प्राणी चढ़ाई करदा है उन्होंने 46,000 योजन पैंडा तय करना पैंदा है 365 दिनां च, एक साल दे विच। ते वो जिहड़ा पैंडा है वो तय करन दे लई फिर उन्होंने कई तरह के राहां चों लंघना पैंदा है। ते जदों वो पैंडा तय करदा है उन्होंने भुख भी लगदी है, आराम भी करना पैंदा, किधरे बरसात भी आ सकती है जी, बड़ियां चीज़ां इदां हुंदियां हन। ते हुण प्राणी तां मर गया, उहदे तक भोजन किद्दां पहुँचावांगे? उन्हें आराम करना बिस्तरा उहदे तक किद्दां पहुँचावांगे? जे रस्ते च मींह आउंदा है उहदे तक छतरी थोड़ा आपां पहुँचा सकदे हां। उहदे लई की होया जी, जदों प्राणी दी किरिया करनी है तो उदों ये सारियां चीज़ां पंडित नूं दान करो, पंडित नूं दवांगे तो वो चीज़ां अगे प्राणी तक पहुँच जाणगियां। इसे करके जदों कोई मरदा ते मंजा बिस्तरा भांडे सारा कुछ भेंट कीते जांदे हन। हालांकि हुण ये ते सी ब्राह्मणी कर्म कांड, साडे लई ते गुरु महाराज कहंदे नानक अगे सो मिलै जे खट्टे घालै दे। पर असीं ना पढ़िया ना विचारिया ना समझिया, बस वेखा वेखी असीं भी लियांदा मंजा बिस्तरा भांडे सारा कुछ लिया के भेंट करी जांदे, जिहदा गुरमत दे नाल सिੱਖੀ दे नाल कोई संबंध नहीं है। हुण फिर अगे ये है कि 365 दिन 12 महीनों च वो सफ़र प्राणी ने तय करना है। तो वो अगे तां जा सकता है जे 12 महीनों तो पहला पहला उहदे निमित्त फिर वरीणा किया जाए। इस करके 11वें महीने वरीणा किया जाता है। तो कहते जदों 365 दिनां दा 46,000 योजन का वो पैंडा जीव जदों तय करदा जिहड़ा मर चुकिया, उदों बाद एक वितरणी नदी है जिहड़ी 550 मील चौड़ी है, गंदगी दे नाल भरी है, विष्टा दे नाल खून मिज दे नाल भरी है। वो हुण नदी जीव नूं आत्मा नूं पार करनी पैंदी है। तो हुण 550 मील दी चौड़ी नदी किदां जीव पार करेगा? उहदे लई फिर अगे ये कह दिता गया कि जे तुसी चाहुंदे हो कि साडा मर चुकिया प्राणी वो नदी पार लंघे, वो फिर ब्राह्मण नूं गऊ दान करनी पवेगी। ते प्राणी फिर वो गऊ की पूछ फड़ के ते वितरणी नदी लंघ सकता है। इहदे लई फिर लोग गऊ दान करदे। ते फिर कहंदे अगे जी पितर लोक है,
ਤੇ 365 ਦਿਨਾਂ तक वो पितर मर चुके जीव की उड़ीक करते ने। ते जे उदों तक वरीणा करा के गऊ दान करके होर चीज़ां दान करके ते ना दित्तियां जाण ते फिर अगे पितर लोक दे दरवाजे हो जाते बंद ते प्राणी भटकदा ही रहिंदा है, पिछे वालियां नूं दुख दिंदा है। हुण पिछे वाले कहिंदे एवें सानू ना मरिया दुख दवे, इस करके कर दवो गऊ दान, कर दवो होर सारियां चीज़ां दान, कर दवो वरीणा। इदां दियां विचारां उत्थे कि फिर अगे जी जांदा है पितर लोक च जीव। उदों बाद जिहड़ी श्राद्ध वाली विचार है वो कहिंदे जी फिर ये जिहड़े श्राद्ध दे 15 दिन हुंदे ने पितर लोक दे दरवाजे फिर खुलदे हन ते उन्हां दिनां च आपां कुछ दवांगे ते वो अगे मर चुके पितरां तक पहुँचदा है। ते महाराज एक गल ते कबीर साहब दे आपां बचन आम पढ़दे ही कि जीवत पितर ना मानै कऊ, मूए श्राद्ध कराही पितर भी बपरे, कहो क्यों पावै कौआ कुकर खाही। महाराज कहिंदे जिउंदियां नूं ते तू पानी ना पुछिया ते मरियां दे लई तू अगे भोजन पहुँचाण दी कोशिश कर रहा। चेते रखी अगे कुछ नहीं हो जाता, अगे कुछ नहीं मिलता। नानक अगे सो मिले जे खट्टे घालै दे। हुण इदां दियां जिहड़ियां वहमां भरमां वालियां विचारां सन, गुरु साहब ने इन्हां नूं बिल्कुल मुੱਢ तो कंडम कर दिता। महाराज कहिंदे अगे कुछ किसी का दिता होया अगे नहीं पहुँचता, ना कोई अगे कुछ पहुँचा सकता है। इते चंगियाइयां बुराइयां वाचै धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़ै के दूर। जिन्नी नाम ध्याया गए मुशक्कत घाल, नानक ते मुखुजले केती छुट्टी ना। इस करके एक ते गल आपां ये समझ लईए कि जेड़े आपां कर्म आ करदे हाँ ये सब वहम भरम कर्म ने, गुरमत दा इहदे नाल कोई संबंध नहीं जे, ते इन्हां कर्मां दा आपां त्याग करना है। दूजे नंबर ते इहदे नाल किसी प्राणी नूं मुक्ति नहीं मिलती है कि बाद च असीं जिहड़ा बल्कि असीं पाठ भी करवाउंदे हाँ उहदा वेखो मर चुके प्राणी दे नाल कोई संबंध नहीं हुंदा कि शायद पाठ असीं करवाया खंड पाठ सहज पाठ ते शायद किते प्राणी नूं उस बाणी दा महात्म मिलेगा। कई अरदास करदियां भी कह देंदे जी बाणी दा महात्म विछड़ी आत्मा नूं बख्शिओ, ये चीज़ां भरम है। वो पाठ तो तां हुंदा है कि साडे घर चों प्राणी चढ़ाई कर गया, साडी मोह सी उहदे नाल, साडी पकड़ सी उहदे नाल। ते हुण बाणी जदों आपां पढ़ांगे, जदों बाणी आपां सुणांगे, गुरबाणी च साडे जीवन दे लई उपदेश संदेश दिते गए हन। उन्हां संदेशां उपदेशां नूं पढ़ के सानू धीरज मिलेगा कि ये सच है। सारियां ने वारी आपो अपनी कोई ना बंदे, धीर सब ने जाना घर घर इहो पहुँचा सदरे नित पवान। बाणी दा पाठ ते तां कि सानू पता लग सके अवर मूए क्या रोई है जो आपा थिर ना रहाए। पर उत्थे भी आपां की करदे पाठ ते रखवा लेंदे, ना कोई सुनदा ते ना कोई करदा ते ना कोई कोल बहिंदा, वो भी एक कर्मकांड ही बन के रह गया। हुण जीव नूं अगे वो मिलदा है जो जीव ने इत्थे जगत अंदर कमाया, नानक अगे सो मिला जे खट्टे घाले दे। बाकी महाराज कहंदे कोई कुछ नाल नहीं जांदा, ना नाल पहुँचा सकता है। बाणी ने गल कीती है जीवन मुक्ति दी। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी दे बचन हन, प्रभ की आग्या आत्म हितावै, जीवन मुक्त सोऊ कहावै। हुण भगत सदना जी कहिंदे हे मेरे मालक जी इत्थे ते बंदा दुख भोगदा रवे, मरण तो बाद उन्होंने मुक्ति भी मिले, उस मुक्ति तो बंदे ने की लेना जे इत्थे ही दुख भोगदा पिया है। एक बूंद जल कारण है चातरिक दुख पावै, प्राण गए सागर मिले फुन काम ना आवे। इत्थे ते बंदा जिउंदा ते बंदा पानी खुणों प्यासा मर गया। उन्होंने उदाहरण दी बबीहे दी कि एक बूंद पानी चाहिदा सी, प्यासा मर गया, बूंद नहीं मिली, मरिया किसे पूछों फड़िया समुंदर च सुट दिता जिते चारे पासे पानी पानी है। हुण वो चारे पासे पानी पानी तो है पर बबीहा हुण मर चुकिया, हुण पानी दा की करे जो उन्होंने जिउंदियां पानी नहीं मिलिया। जे जिउंदियां मुक्ति नहीं मिले इत्थे दुख ही सारी जिंदगी भोगने पए ते फिर मरण तो बाद वाली मुक्ति तो की लेना। भगत नामदेव जी का बड़ा प्यारा बचन है, कहते मोको तू ना विसार, तू ना विसार, तू ना विसारे राम मैया। हे मेरे मालक जी कृपा करो सानू ना भुलावो,
सानू ना भुलावो, सानू हमेशा याद रखो। वेखो साडी हालत की बनी पई है। आलावंती ए भ्रम जो है मुझ ऊपर सब कोपिला। इत्थे जिहड़े वड्डे वड्डे घरां वाले अमीर जिन्हां नूं अपनी जात अपने धन दा बड़ा हंकार है, नामदेव साहब कहंदे मालक जी वेखो मेरे ते सारे कोपदे पए जे, मेरे नाल सारे माड़ा विहार करते पे हैं। सूद सूद कर मार उठायो, कहा करूँ बाप बीठला। मैनू शूदर कह कह के नीवा कह कह के मेरे नाल धक्का करते पे ने। मंदिर मैनू नहीं जान देंदे, भगती मैनू नहीं करन देंदे। मेरी ते ये हालत बनी पई है। इत्थे वेखो तुहाडे भगत दे नाल की हो रहा है। ते जे भगती करन दा फल ये है जी, भगती करके अगे जाके मुक्ति मिलेगी। भगत जी कहते मालक जी अगे वाली मुक्ति नूं मैं की करा जे मेरा इत्थे जीवन दुखां भरिया है। मूए हुए जो मुक्त दिओगे मुक्त न जाने कोयला। ए पंडिया मोको टेढ़ कहत है तेरी पैज पडौली होएला। वो कहते हे मालक जी वेखो ये पांडा मैनू टेढ़ा कह रहा है, मैं तुहाडी भगती करदा हाँ ते अगों पंडित मेरे नाल माड़ा विहार कर रहा है। ते इहदे नाल वेखो नामदेव दा ते कुछ नहीं जे घट रहा। नामदेव नूं ते उन्हां लोगां ने पहलां ही डिकलेयर कीता पिया है कि तू नीवा है, तू शूदर है। पर हुण तुहाडा भगत होण दे बावजूद भी मैं रुलदा पिया है ते उंगल मेरे ते नहीं जे उठ रही, उंगल ते तुहाडे ते उठ रही है कि रब दा भगत किद्दां ठोकरा खांदा पिया है। जिवें आपां एक बचन पढ़दे हां, गई बहोड़ बंदी छोड़ निरंकार दुखदारी, कर्म न जाना धर्म न जाना, लोभी माया धारी, नाम परयो भगत गोबिंद का, राखो पैज तुम्हारी। कहंदे मेरा ते ना पै गया, रब दा भगत है ते हुण मेरी इज्जत मेरी नहीं है, मेरी इज्जत ते तुहाडी इज्जत है। इस करके मालक जी राखो पैज तुम्हारी, तुहाडी इज्जत है तुसी रखो, अपने भगत दी बांह फड़ो, तुहाडी वडियाई वड्डी होएगी। कहंदे मूए हुए जो मुक्त दिओगे मुक्त न जाना कोयला। मरण तो बाद वाली मुक्ति नहीं, जिउंदे जी ये जेड़े हंकार दे बंधन, विषयां विकारां दे बंधन, दुखां दे बंधन, मालक जी हौमे दे बंधन, इन्हां तो मुक्ति दी दात दवो। ते गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे मुक्त कौन है, प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सोऊ कहावै, तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तै नाहि वियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कहिए जीवन मुक्त। वो सतगुरु ने पूरे शब्द अंदर दसिया कि जीवन मुक्त कौन बनता है। कबीर साहब कहते हुण जेड़ा मुक्ति का दरवाजा लंघना है, दरवाजा बड़ा छोटा है। कबीर मुक्त द्वारा संकुरा, संकुरा भाव बहुत छोटा जिहा सौड़ा जिहा। राई दसे भाए, राई का बीज ऐन सरों के दाने वर्गा, सरों के बीज वर्गा बिल्कुल छोटा जिहा हुंदा है। उदों भी कहते 10 गुणा छोटा है मुक्ति का द्वार। और मन तो मैगल होए रहे हो निकसो क्यों कह जाए, मन बनया पिया है हाथी, हंकार करके हाथी बनया पिया कि मेरे वर्गा है ही कोई नहीं, मेरे वर्गा धनी कोई नहीं, मेरे वर्गा ज्ञानी कोई नहीं, ध्यानी कोई नहीं, कवि कोई नहीं, विद्वान कोई नहीं, सियाणा कोई नहीं। मन हंकार करके हाथी होया पिया है। ते जेड़े दरवाजे चों लंघना है, दरवाजा बड़ा छोटा है मुक्ति का दरवाजा। हुण दसो किद्दां लंघिया जाए। मन तो मैगल होए रहे हो। इदों अगले सलोक च फिर कबीर साहब इहदा उत्तर देंदे हन कि किवें छोटे दरवाजे चों भी जीव लंघ सकदा है। वो कहंदे कबीर ऐसा सतगुर जे मिलै तुठा करे पसाओ। जे इदां दा पूरा गुरु मिल जावे ते गुरु त्रुठ के, गुरु अपनी प्रसन्नता वरता के ते जीव ते अपनी मेहर परी नदर वरता दवे, फिर मुकत द्वारा मोकला सहजे आवो जाओ। गुरु किरपा करते ने मुक्ति दे द्वारे नूं इन्ना खुला बना देंदे, रस्ते नूं इन्ना खुला बना देंदे कि जीव
सहजे ही उस दरवाजे चों लंघ भी सकता है ते वापस भी आ सकता। गुरु अमरदास साहब जी ने इन्हां ही बचनां दे नाल रलदे होए 2 श्लोक सानू बख्शिश करके ते गल होर स्पष्ट कीती है। गुरु अमरदास साहब दे बचन हन, नानक मुकत द्वारा अत नीका नाना होए सो जाए। कहंदे मुक्ति दा दरवाजा बड़ा छोटा है ते छोटे हो के ही उस दरवाजे चों लंघिया जा सकता है। हौमै मन अस्थूल है क्यों कर विच दे जाए। हंकार करके मन बड़ा वड्डा होया पिया हाथी वर्गा, दरवाजा छोटा ते छोटे हो के लंघिया जा सकता है। कहंदे हुण किदां वड्डे दरवाजे चों हौमे नाल भरिया होया मन लंघ सकदा छोटे दरवाजे चों। अगे वो कहंदे सतगुर मिलिया हौमै गई जोत रही सब आए। ये जियो सदा मुक्त है सहजे रहया समाए। जदों बंदा गुरु वाला बनता है तो गुरु की करते ने, 2 गुरु दियां कला वरतदियां ने। एक तो जिहड़ा हंकार करके मन हाथी होया पिया है, गुरु मन रूपी हंकारी हाथी नूं निमरता च लिया के ते बिल्कुल कीड़ी वर्गा बना देंदे हन। भाव हंकार भाव खत्म करके निमरता च लियाउंदे हन। इनू समझाउंदे ने इदां हंकार कीतियां हौमे धारण कीतियां तू पार नहीं लंघ सकदा, पहला हंकार छड्ड। फिर मन नू छोटा कर दिता, दरवाजे नू गुरु ने वड्डा कर दिता। दोवां पासियां तो गुरु ने काम सौखा बना दिता। मन छोटा कर दिता, जिहड़ा हाथी सी ते छोटे दरवाजे चों लंघ नहीं सी सकदा, ते दरवाजे नू गुरु ने तरुठ के वड्डा बना दिता। हुण जीव सहजे आओ जाओ वाली खेड वरत गई, आ सकदा जा सकदा, भाव सहजे मुक्ति प्राप्त कर सकदा। पर मुक्ति कदों ये जीव की झोली च पैंदी है, जदों जीव गुरु वाला बनता है ते गुरु की कृपा इहदे ते वरतदी। काम क्रोध लोभ मोह मन लीना बंधन काट मुकत गुर कीना। जदों गुरु ये हौमे हंकार दे बंधन कट देंदे फिर जीव मुक्त है। ते मुक्त आप ही नहीं हुंदा, फिर जिहड़ा मुक्त है वह होर कईयां नूं मुक्त करन दे समर्थ बनता है। इदों अगे कबीर साहब फरमान करदे, कबीर ना मोहे छान ना छापरी, ना मोहे घर नहीं गाँव। कहंदे मेरे कोल कुछ नहीं है, कुछ नहीं है जिहदा मैं हंकार करां। इत्थे किसी नूं अपने उच्चे महलों का घर का हंकार हो सकता है, किसी नूं ये हंकार हो सकता सारा पिंड मेरा मेरी पिंड च चौधर चलती है। किसी नूं अपनी उच्ची जाति का हंकार हो सकता, किसी नूं अपने नां का हंकार हो सकता। जी साडा ते नाम चलता है, लोग इहदा भी हंकार करते हैं। पर कबीर साहब कहते साडे कोल भाई कुछ नहीं जे, ना मोहे छान ना छापरी, ना मोहे घर नहीं गाँव। कहते ना मेरे को छन है, ना कोई बहुत वड्डी छपरी है, कोई घर नहीं है, कोई गांव किसी पिंड ते साडी चौधर नहीं चलती जिदा असी हंकार करिए। मत हर पूछे कौन है मेरे जात ना नाओ। कहते ना मेरी कोई उच्ची जात है, ना कोई मेरा बहुत वड्डा नामना। असी ते इसे भाव च निमरता च बैठे आ कि हो सकता है रब किधरे पोछी लवे तू कौन है, तू कौन है। क्योंकि राम स्नेही तो मिला जो दोनों वर्ण गवाए, जिन्हें अपने अंदरों हौमे भी छड्ड दिती, हीन भावना भी छड्ड दिती, उन्होंने फिर राम स्नेही ते रब दी प्रीत प्राप्त हुंदी है। सो कबीर साहब कहंदे है साडे कोल कुछ नहीं है सवाए मालक दी टेक दे, मालक दे आसरे दे, कि हो सकदा किसी वक्त मालक दी मेहर भरी सवली नज़र साडे ते वरत जावे, वो पुछ लवे तू कौन है, ते उहदे घर असीं कबूल हो जाइए। कबीर मोहे मरने का चाओ है, मरों तां हर कै द्वार। कहते सानू मरण की बड़ी तीबर तांग है। ये एक वेखो बाहर दा मरना है, एक है अंदर दी हौमे वाली बिरती नू मार लेना, जिहड़ी विचार सलूकां च कबीर साहब लगातार कर रहे हैं। कहते असी चाहुंदे हाँ असी मर जाइए, कुर्बान हो जाइए, साडे अंदर दी हौमे हंकार वाली बिरती मुक जाए। कबीर मोहे मरने का चाओ है, मरूं तां हर कै द्वार। पर असी मरना चाहुंदे हाँ रब दे दरवाजे ते। लोग जमीर मार के दूजियां दे बूहियां ते जाके भी मरदे ने,
हथ जोड़ते बिना कारण तरले करते। पर कबीर साहब कहते असी मरांगे तो मालक के दरवाजे ते मरांगे, क्योंकि मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार। मतां कितरे रब पुछ ही लवे कि मेरे दरवाजे ते कौन पिया है। यह गुरु खातर मालक खातर अपना आपा कुर्बान करना। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी दे नाल भाई मती दास, ते जदों उन्हां नूं पुछया गया मती दासा दस तेरी अखीरली इच्छा की, ते भाई मती दास कहन लगे मेरा मुँह मेरे गुरु वाले पासे रख के ते मेरे सिर ते आरा चलायो, क्योंकि मैं सारी जिंदगी अपने गुरु दे दीदार करदियां जिंदगी बतीत कीती है। सारी जिंदगी गुरु दे सन्मुख रह के जिंदगी बतीत कीती है। ते अज जे अखीरला साह इस तन ने लैना, मौत दा कोई डर नहीं है, भै नहीं है। मैं गुरु दे सन्मुख रह के कुर्बानी देना चाहुंदा हाँ। सेवक की ओढ़क निभी प्रीत, जीवत साहिब सेवियो अपना चलते राखियो चीत। कहने लगे मेरा मुख मेरे गुरु वाले पासे करके ते मेरे सिर ते आरा चला दवो। मौत दा कोई भै नहीं है, गुरु तो बेमुख होने दा भै है। मौत नूं ते मैं हस के गले लगाउण दे लई तैयार हाँ, बस ये है कि मरा मैं गुरु के दीदार करदियां होया, ताकि मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार। हुण जदों कबीर साहब ने इदां दे क्रांतिकारी उपदेश संदेश विचार जगत दे सामने रखे, ते एक वक्री किस्म दी तब्दीली कबीर साहब दे जीवन च ते उन्हां दे नाल रहण वालियां दे विच आई। उहदा प्रभाव फिर बनारस ते भी पिया, होर लोगां ते पिया, ते लोग कबीर साहब जी नूं बहुत सलाउण लग पे। बहुत तरह के कारज सन जिहड़े कबीर साहब जी की वडियाई सदका हुंदे सन। मान सारे पासे कबीर जी का वध गया। ते जदों लोग फिर कहिंदे हन कबीर जी हुण ते तुहाडा बड़ा उच्चा नामना है, सारे पासे तुहाडी बड़ी जय जयकार है, तुहाडी बड़ी कमाई है। ते कबीर साहब अगों की कहिंदे, कबीर ना हम किया ना करेंगे ना कर सकै शरीर। कहिंदे ना वेखो मैं कुछ कीता। ये गुरु साहबाना दी भगत साहबाना दी गुरसिखां दे जीवन दी निमरता है, और यही निमरता गुरु ने सानू सिखाई है। क्योंकि बंदा करदा इत्थे कुछ नहीं है, पर वड्डे वड्डे दावे लोग करते ने, राजनीतिक लोग जी वेखो मैं किन्ना कुछ कीता कुछ नहीं हुंदा है। पर केवल एक बाहरों दावा ते वखावा करके लोगों के मन च भरम पा देना कि शायद उन्हें बहुत कुछ किया है जी, उस लीडर ने बड़ा कुछ किया कुछ नहीं हुंदा। बस केवल वड्डे वड्डे भाषण दे के वखावे करके बोर्ड लगा के लोगों दी अखां च घट्टा ही पाया हुंदा है। इत्थे जिहड़े कुछ नहीं करते वो भी कहिंदे असी बड़ा कुछ किया है, जिन्हां दे मन अंदर राजनीति है, पर जिन्हां दे अंदर भगती है बहुत कुछ करके भी कहिंदे हन मैं कुछ नहीं किया। कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाओ ना जाने मेरा। वो कहिंदे नानक नीच कहे विचार वारिया ना जावा, एक बार जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। कबीर साहब की वडियाई करते ने लोग, ते अगों कबीर साहब की कहिंदे, कबीर ना हम किया ना करेंगे ना कर सकै शरीर, ना मैं कुछ किया जे ना मैं कुछ कर सकदा, ना मेरे शरीर अंदर इन्नी पाया इन्नी ताकत के ये कुछ कर सके। क्या जानो कि हर किया भयो कबीर कबीर। कहिंदे ये सारा कुछ जो भी है वो रब दा ही कीता होया है। हाँ करदा वो है, वडियाई वो अपने भगतां नूं देंदा, ये ओदी वडियाई है। करदा उही है सारा कुछ, पर उहदा मान वो अपने भगतां नूं अपने सेवकां नूं देंदा है, जिहदे सदका फिर सेवकां दी भी संसार अंदर वडियाई महिमा ते कीर्ति बनदी है। करन वाला असल दे विच वो परमात्मा है, करन कारण समर्थ है। कहो नानक विचार कारण करते वस है, जिन कल राखी तार। सो इदां कबीर साहब जी सानू जीवन दियां ये सेधां ये उपदेश संदेश इन्हां बचनां दे राहीं बख्श रहे ने। गुरु कृपा करे पावन उपदेश साडे सबनां दे हिरदियां च वसन, जीवन सफल होवे। ये लोक सुखी ये परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। भुलां चुकां दी खिमा करनी फतेह परवानो जी। वाहिगुरु जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ